So, good afternoon, all. Today we are going to learn the experiment number 3 of mechanics of material. In the previous lecture, we discussed two experiments. First is the study of UTM machine, that is universal testing machine, under which we have performed many of operation like tensile, compression, shear, bending, etc. Then we discussed the experiment number 2, that is the performance of a tensile test on the UTM machine. Okay, so today we are going to learn or going to discuss the experiment number 3, that is the compression test on the metal. Here, if you see the experiment number 3, that is the compression test on the metal, which is comes under the course outcome 2. The course outcome 2 is the analysis of all the testing operation of a compression under the UTM machine. Okay, so what is the aim of this experiment? The aim of this experiment is to perform compression test on the metal. Okay, to perform the compression test on the metal. Generally, this compression test is performed on various material like a ductile and brittle material also, but this method or this operation is performed on the brittle material most of the time. Okay, so the aim of this experiment is to perform compression test on the metal. Objective of this experiment is the goal of compression test is to determine the behavior or responses of the material when we perform the compression force on it. Okay, when we perform compression force on any material, equal and opposite forces in a compressed direction. So what are the different stresses, strain and deformation occurs in the body, that we have to study in the compression test. Okay, then in the compression test we have to conduct the compression test on the specimen using the universal testing machine. Generally we use the UTM machine for such kind of operation. So for compression, for shearing, for tensile and for bending, we use the UTM machine. So for that operation we also use the UTM machine for the compression test. The apparatus used in this experiment is UTM machine, universal testing machine, और अगर वो available नहीं है तो in that case we can use the compression testing machine also. Okay, the specimen which is used for this compression test is either cylindrical or in cube shape. Okay, we can use cylindrical material also in the cross section and cube material also. Generally, the cast iron material, aluminium and mild steel are also used for the performance of such type of operation. So here we can use bricks as a specimen for the compression test also. So the instrument which are used for the measuring purposes are vernier caliper हम लोग यहाँ पे use करते हैं, then linear scale liner जो हमारी सिंपल स्केल होती है वो हम लोग यूज करते हैं, डायल गेज यूज करते हैं, एक्सटेंशन मीटर यूज करते हैं फॉर द इलोंगेशन मेजरमेंट. So the main objective of this testing is to perform compression test on the material and to find out the deformation, stress, strain and elongation on that particular material. Generally हम लोग brittle material के ऊपर ये test करते हैं, लाइक जैसे ग्लास बोल सकते हैं, ब्रिक्स बोल सकते हैं, हम लोग डक्टाइल मटेरियल पे भी ऑपरेशन करते हैं, माइल्ड स्टील है, एल्यूमिनियम है, तो ऐसे कुछ मटेरियल भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं. इसके लिए हम लोगों को कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे वर्नियर कैलिपर है, सिंपल स्केल है, डायल गेज है, एक्सटेंशोमीटर है, तो वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट पर्पस. ओके, so as you know, this is the diagram for the UTM machine. So in the UTM machine we have a two unit, control unit and loading unit. So this is a loading unit which is used for the loading and unloading of a specimen. This is the two jaw in which the specimen is fixed, and according to the type of operation, if it is tensile, if it is compressive, if it is shear, so according to that this jaw is used in the operation. This is the extensometer which is used for the measuring of elongation. This is the base, and these are the control panel which is used for controlling the force applied force and all the respective parameters. Okay,
The next is what is found in the compression test. So in the compression test, generally this is opposite in a nature of tensile test. In the tensile test, what we have do in the tensile test, we applied the equal and opposite forces in the outer direction, but in the compression test, we applied the equal and opposite forces in the inside direction. Okay, so we compress that material to perform the deformation on it, and generally for that we use the brittle material for the compression test. Brittle material are generally weak in a tension, but which is strong in a compression. Okay, which is weak in a tension but strong in compression. So for that purpose, we generally use the brittle material for the compression test. Okay, so here we can use aluminum also, mild steel also, but these are the ductile material and which have a certain amount of deformation, so which is unable to test the compression in a minimum period of a time. So for that compression test we generally use the brittle material like bricks है, glass है, या फिर जो भी ऐसे मटेरियल है जिसमें compression जो है वो hard है और tensile जो है वो कम होता है, तो such type of material we use in the compression testing. Okay, then इसमें सेटअप किस तरीके से होता है, तो we generally use the circular section material or cylindrical section material or brick size, as you know, the rectangular shape. So such type of specimen we use, and we place that material in the two jaws, upper and lower jaws. We fix that material at a one point and move the jaws which is movable at another point. So we apply the force on a one side in a compressive forces, equal and opposite forces. So we start the forces from the 500 kg and we can increase that forces in the 500 of interval, 500 kg of interval, till when the till कब तक हम लोग अप्लाई करेंगे, जब तक वो मटेरियल डिफॉर्म नहीं हो जाता, जब तक वो मटेरियल ब्रेक नहीं हो जाता, बिकॉज इसमें हम लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ती है. सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन टिल द ब्रेकिंग पॉइंट. ठीक है. So there are some criteria like the specimen which is of a cylindrical specimen. अगर वो होता है तो having height plus diameter ratio is less than 2, तो उसमें कुछ criteria होते हैं. तो generally we have used the specimen, fixed specimen हम लोग यूज करते हैं, ब्रिटल मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया है या फिर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग उस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है. प्रोसीजर क्या होती है, तो जब व्हेन वी यूज द स्पेसिमम, जैसे हम लोगों ने अगर ब्रिक्स यूज किया है या फिर सर्कुलर रॉड सेक्शन अगर यूज किया है, तो फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन द इनिशियल लेंथ एंड इनिशियल डायमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसिमन. ठीक है. सो व्हेन वी गेट ए डायमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसिमन, मतलब हम लोग उसको बोल सकते हैं कि इनिशियल डायमीटर. सो फॉर दैट इनिशियल डायमीटर वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, दैट इज 5/4 d स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके we have to find out the area of that particular specimen initially. Okay, and when the operation is completed, so at the end we have to find out the final diameter and final length of that particular material. Here we use the bearing plate. So bearing plate is generally used in the compression test for bearing plate, which is used to transfer the force from one material to another material. So this type of a plate here we have to use in the breaking condition in the compression test. Okay. So मैंने आपको बताया था the specimen is placed centrally between the two compression plates. तो जो जिसको हम लोग जॉज बोलते हैं उसके बीच में उसको फिक्स किया जाता है. देन एक साइड से आपको फोर्सेस देने पड़ते हैं, एक साइड से हम लोग उसको फिक्स रखते हैं. ठीक है. तो उस हिसाब से हम लोग जो लोड लगाते हैं, दैट लोड स्टार्टिंग लोड उसका इंटरवल जो रखेंगे वो 500 kg का रखेंगे. मतलब पहले अगर 500 लगाते हैं तो उसके बाद 1000 लगाएंगे, फिर 1500 लगाएंगे. सो इन दिस वे वी हैव टू अप्लाई द फोर्सेस ऑन दैट पर्टिकुलर मटेरियल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्रेशन टेस्ट. ठीक है. सो ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दी initial length and initial height of the specimen, and once we get the height and length and diameter, that is d0 initial diameter हम लोग बोलेंगे. So with the help of that initial diameter we have to find out the area of the initial area of the specimen by using 5/4 d square formula. Then we have to fill this observation table, that is we can use uh, टिल फोर्सेज. जब तक आपको ब्रेकिंग पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक आप लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस कर सकते हो. तो जैसे मैं पहले
100 kg यूज करती हूँ लोड, तो उसके लिए डिफॉर्मेशन कितना आएगा, तो दैट डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली मेजर विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशियोमीटर। फिर मैं 500 लगाती हूँ तो कितना आएगा, फिर 1000 लगाती हूँ तो कितना डिफॉर्मेशन आएगा। सो इस हिसाब से आप लोगों को उसका डिफॉर्मेशन चेक करते रहना है टिल जब तक आपको उसमें एक्सटेंशन नहीं मिलता है, जब तक आपको उसमें डिफॉर्मेशन नहीं मिलता है, टिल दैट टाइम यू हैव टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन। ओके, देन आफ्टर दी परफॉर्मेंस आपको क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया A0 एंड फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, original matlab A0 initially you have to find out the diameter, and for that by using that diameter you have to find out the area. Then when the deformation comes उसी ऑब्जेक्ट का, उसी स्पेसिमन का आपको विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल यूज करके आपको उसका डायमीटर फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। देन यू विल गेट द इनिशियल एरिया एंड फाइनल एरिया। ठीक है, देन स्ट्रेस आपको फाइंड करना पड़ता है, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया है, स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। सो व्हाट जिसमें आपको डिफॉर्मेशन मिलता है वो पॉइंट वाला फोर्स आपको यूज करना है विथ रिस्पेक्ट टू द final cross sectional area. So force per unit area, which is the stress, that is in Newton per mm square. Okay, then strain having formula change in dimension to the original dimension. तो यहाँ पे change क्या होगा, इसमें length आपकी change होगी, that is change in length to the original length। जो original length हम लोग initially find करके रखते हैं वो, और चेंज इन लेंथ मतलब जिस पॉइंट पे आपका डिफॉर्मेशन हुआ है उस पॉइंट का लेंथ आपको मेजर करना है बाय यूजिंग वर्नियर स्केल। सो दैट इज डेल एल अपॉन मतलब चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द स्ट्रेन। ठीक है, सो फॉर कंप्रेशन टेस्ट फिर आप लोगों को क्या करना है, तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फाइंड करनी है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आप लोगों को पता है कि फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो इलास्टिसिटी होता है, जिसमें हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है। तो इनिशियली यू हैव टू अप्लाई सर्टन फोर्सेस, जैसे 500 केजी अगर मैंने लगाया है तो 500 केजी पे इलोंगेशन आपका ज्यादा नहीं मिलेगा, यू हैव टू परफॉर्म ऑन द इलास्टिसिटी। उसके बाद फिर हमारा इलास्टिसिटी परफॉर्म होने के बाद एज पॉइंट आता है, फिर अल्टीमेट पॉइंट आता है, फिर हमारा ब्रेकिंग पॉइंट आता है। तो उस हिसाब से आपको वो कितने फोर्सेस पे कितना इलोंगेशन आया, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, तो स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस, स्ट्रेन अलोंग वाई एक्सिस। सो अकॉर्डिंगली आप लोगों को वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। उसके बाद इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको मैंने इसके पहले एक्सपेरिमेंट में बताए थे, वही सेम फॉर्मूले आपको कंप्रेशन के लिए यूज करने हैं। यंग मॉडुलस फाइंड करने के लिए यंग मॉडुलस दैट इज ई आपको फाइंड करना है, विच इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू दी स्ट्रेन आपको फाइंड करना है। अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है आपके मैनुअल्स में। सो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड आउट दिस टर्म। देन डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन ए लेंथ, कितनी परसेंटेज लेंथ में रिडक्शन हुई है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो ये कैलकुलेशन हम लोगों को इसमें करने पड़ते हैं। देन रिजल्ट आपको क्या लिखना है, सो यू हैव टू राइट द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ ए द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन स्पेसिमेन। मतलब जहाँ पे आपका डिफॉर्मेशन आता है, फाइनल डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया, उसका यूज करके आपको इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट, आपको सर्टेन इंटरवल में फोर्सेस लगाने हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू दैट फोर्सेस आपके डिफॉर्मेशन आएंगे, वो डिफॉर्मेशन फाइंड करने हैं टिल द ब्रेकिंग पॉइंट। उसके बाद आपको उसका स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया, इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ फाइंड करनी है। उसके बाद उसका रिस्पेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको फाइंड करनी है, एंड देन यू हैव टू राइट आउट द रिजल्ट। ठीक है, तो जब भी आपका इसका वाइवा होगा तो वाइवा में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम लोग डक्टाइल मटेरियल के ऊपर क्यों नहीं करते हैं कंप्रेसिव टेस्ट, मतलब हमेशा ब्रिटल मटेरियल ही क्यों यूज किया जाता है फॉर द कंप्रेशन टेस्ट। सो ब्रिटल मटेरियल इज हैविंग ए हाईएस्ट कंप्रेशन लोड, वो सस्टेन कर सकता है, इसमें टेंसाइल कैपेसिटी कम होती है। इसलिए हम लोग, क्योंकि अगर हम लोगों ने डक्टाइल मटेरियल ले लिया तो उसमें कंप्रेशन कैपेसिटी कम होती है, तो वो परफॉर्मेंस करने के लिए बहुत टाइम जाता है। तो ब्रिटल में हम लोग इसमें ले सकते हैं। तो accordingly we have to use the brittle material in the compression test and tensile material in the tensile test. Okay, sorry, ductile material in the tensile test. तो इसमें आप लोगों को ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो we have a one video based on that virtual lab video. So you must know what kind of a performance is performed in the compressive test. So let us see.
So this is the UTM machine. So this is the loading. This is the control unit. One second. This is a loading unit. This is a loading unit, and this is a control unit. Okay. So this is a jaw, upper jaw, lower jaw. In between these two jaw, we have to place this specimen, cylindrical specimen, circular specimen, or we can use the bricks. Okay. So see, this is a control unit and this one is a loading unit. These are the two jaw, lower jaw and upper jaw. In between you have to place the object. This is the control panel. जो हम लोग इसको अप्स मतलब जो जॉस को ऊपर जाने के लिए हम लोग उसको सर्कुलर यूज करते हैं. तो इसमें हम लोगों का स्पेसिमम प्लेस होगा. यू कैन सी यहाँ पे वर्चुअली इसको कैसे प्लेस किया जाता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है, ऑन ऑफ के बटन दिए हुए रहते हैं. जैसे आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, वी हैव टू स्टार्ट द बटन. So initially you have to measure the initial diameter and length of the specimen with the help of vernier caliper. So here we have to measure the diameter of that specimen. Here we use the circular specimen. So here we measure the diameter, initial diameter, that is comes 21 mm. Initial diameter, that is 21 mm. So in this way, you have to measure the diameter with the help of vernier caliper. When we perform the operation by using virtual case, so which is automatically with the help of software, you get the dimension of that particular specimen. So इसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं. इनिशियल डायमीटर भी दो डायमीटर से यहाँ पे दिखी है, D1X एंड D1Y. तो कुछ एरर ना आए इसलिए हम लोग इसमें एवरेज डायमीटर, एवरेज इनिशियल डायमीटर फाइंड करते हैं. दो डायरेक्शन से हम लोग इसकी डायमीटर फाइंड करते हैं. तो उसको पहले नाम देते हैं, पहले एक्स डायरेक्शन से फाइंड करेंगे, फिर वाई डायरेक्शन से फाइंड करेंगे और इसका फिर एवरेज डायमीटर लेंगे. सो हियर वी गेट द इनिशियल डायमीटर ऑफ द स्पेसिमेन इज 21 mm. ओके. सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट द इनर्शिया. अगर जरूरत है तो इनर्शिया फाइंड करेंगे, नहीं जरूरत है तो छोड़ देंगे. अगर उसने मेंशन किया है फाइंड करना है तो इन दैट केस वी हैव टू फाइंड आउट द inertia. Otherwise you have to only find out the diameter, initial diameter of this particular object. Okay, so here we get 21 mm diameter. Then next we have to find out the length of the specimen. So with the help of this vernier scale, we measure the length. We measure the length of this particular object. So here we get the length that is in between 40 to 42 mm. Okay. Then we use this सर्कुलर ऑब्जेक्ट जिसका हम लोग यूज करते हैं लोडिंग अनलोडिंग के लिए. तो ये जो जॉस के बीच में हम लोग हमारा मटेरियल डालेंगे, ये हम लोगों ने यहाँ पे सर्कुलर मटेरियल हमारा एक साइड पे फिक्स कर दिया. फिर इस रोलर से हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसमें फिक्स कर देंगे. ठीक है. सो इन दिस वे आवर ऑब्जेक्ट इज फिक्स इन बिटवीन द टू जॉस. दिस इज द एक्सटेंशियोमीटर which is attached here, which directly get the deformation in the object when we apply any kind of a forces. With respect to that, you will get a extension in the object. Okay. So in this way, you have to fix the specimen in between the two jaw. This is a control panel which can be used for shifting that system in the up and down direction. Okay. तो यहाँ पे हमारा ये स्पेसिमन फिक्स हो गया. देन वी फोकस ऑन दी अप्लाइड लोड. फिर हम लोग लोड अप्लाइड करेंगे. सो फॉर दैट वी हैव टू ऑन दिस बटन. पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये मीटर पे आपका जीरो इनिशियल कंडीशन पे है क्या. ठीक है. व्हेन वी अप्लाई द फोर्सेस, जैसे हम लोगों ने जीरो फोर्स अप्लाई किया तो वी गेट जीरो डिफॉर्मेशन. फिर हम लोगों ने 400 केजी अप्लाइड किया, 400 न्यूटन किलो न्यूटन अप्लाइड किया तो उसके लिए डिफॉर्मेशन 4 mm आया. उसके बाद 600 किया. तो रिस्पेक्ट टू द ऑफ दैट
टिल आप लोगों को कब तक करना है, जब तक ये आपका सेक्शन डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं होता, लाइक दैट, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा व्हेन वी अप्लाइड द फोर्सेस, तो ये ऑब्जेक्ट डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, सो दैट सर्कुलर ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू सच टाइप ऑफ ए इवेल्यूट सेक्शन। सो डिफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है आपको। वंस यू गेट द डिफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट दी कौन से पॉइंट पे आपको डिफॉर्मेशन मिला है, वो एक्सटेंशियोमीटर से हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग वर्चुअली यूज करते हैं तो वर्चुअली में आप लोगों को डायरेक्टली इस तरीके से ग्राफ मिल जाता है, जिसमें कितने फोर्स पे आपका मॉड्यूल जो है, कितने फोर्स पे आपका ब्रेकिंग पॉइंट आया है और कितने फोर्स पे आपका स्ट्रेस ऑन स्ट्रेन कांटेक्ट में आई है, वो डायरेक्टली आप लोगों को वर्चुअल में मिल जाता है। अगर हम लोग प्रैक्टिकल करने जाए तो वी हैव टू परफॉर्म दी ऑल दी कैलकुलेशन। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक आप लोगों को ब्रेकिंग पॉइंट पता नहीं चलेगा। सो इसमें अगर कंप्यूटर सिस्टम अटैच करते हैं यूटीएम मशीन को, तो इन दिस वे यू विल गेट डायरेक्टली अ ग्राफ पेपर विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। डायरेक्टली भी हम लोगों को मिलता है, तो मतलब कौन से पॉइंट पे कितने फोर्स पे कहाँ पे था, फिर उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन इलोंगेशन कितना आया, तो इस ग्राफ में डायरेक्टली हम लोग को शो हो जाता है कि कहाँ पे मैक्सिमम इलोंगेशन था, कहाँ पे मिनिमम इलोंगेशन था, कहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ आई थी, एंड व्हेन द मटेरियल ब्रेक्स, तो डायरेक्टली सारे कैलकुलेशन मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम लोग अटैच करते हैं तो डायरेक्टली यू विल गेट द कैलकुलेशन इन द एक्सेल शीट। मतलब इसमें विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ फोर्सेस इलोंगेशन कितने, वो डायरेक्टली मिल जाता है। अगर हम लोग मैन्युअली उसको निकालते हैं तो मैन्युअली यू हैव टू फाइंड आउट द इनिशियल डायमेंशन, इनिशियल डायमीटर, इनिशियल एरिया, तो उसका सभी चीजों का कैलकुलेशन करके हम लोग एक्सटेंशन निकालते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू परफॉर्म दी compression टेस्ट यूजिंग द यूटीएम मशीन, जिसमें आप लोगों को सभी चीजें फाइंड